my dear students. How are you? Fine? Good. So before starting today's class, everyone join your hands and close your eyes. We will do a prayer. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Okay, so now you can open your eyes. So last week we started revision of English literature portion, and today we are going to do the same. So last week we completed unit 3 and today we will do revision of unit 4, that is helping each other. Okay, so let us start. Everyone open your English textbook and also keep your revision sheet with you. So kids, as you all know that we should always help our family members, है ना? If we help our family members by doing our work and helping them, then by this way we can show our love and support to them, which is very important, right? So through this chapter we can learn many things, that how can we help our family members. Okay, so let us start. Now first of all, let us start with phonics fun, that is short O. So the sound of short O is O, है ना? Short O का sound होता है O. Now let us see some words with short O. Mom, mop. Dog, pot. Top, box, dot and log. So these are some words that have short O sound. Now take your revision sheet and we will see phonic activity. Okay, so phonic activity. So unit 4, write CW and today's date. So हमें इसमें क्या करना है? We have to fill in these blanks with letters to make a complete word with the help of these pictures. So ये क्या है? This is a mop. Yes, so mop का M हमें दिया हुआ है, right? So यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे? O and then here P. So this is mop. Mop. Now second, ये किसका पिक्चर है? सोक. yes. So यहाँ पर S तो दिया हुआ ही है हमें. So यहाँ पर लिखेंगे O, C तो है ही, and then here K. So that is soak. Now next page. Now next. See, ये पिक्चर किसका है? कोप. Yes. So C यहाँ पर दिया है, उसमें O का साउंड, that is को. कोप. Now next. ये क्या है? सी T है, बट यहाँ पर तो हम T नहीं लिख सकते, बट T कैसी होती है? हॉट. Yes. So यहाँ पर H तो दिया है, so हम लिखेंगे O and T तो है ही, so that is hot. Now ये क्या है? Top. Yes, so T is given. तो यहाँ पर O P, that is top. Okay. Now see ये क्या है? बड़ा सा पत्थर, यानी कि रॉक. बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, that is rock. So R is given. ROCK. Rock. Now this is coat.
क्या है ये? कोट। कोट छोटे बेबीज जो होते हैं, बेबीज जिसमें सोते हैं, दैट इज कोट. सो C is given, C-O-T, कोट. ओके, कोट. नाउ नेक्स्ट इज, पिक्चर इतना अच्छा से इसमें नहीं दिख रहा है, प्रिंट नहीं हुआ है, बट ये पिक्चर है बॉक्स का. ठीक है, दिस इज ए बॉक्स. सो B is given, then O and X, that is box. Now next, ये किसका पिक्चर है? Yes, clock. So C-L-O-C-K, clock. And next is, and last is frog. So F and R is given. यहाँ पे O, frog, frog. Okay. Now IBL question. Do you help your parents? How? मतलब आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो. मुझे पता है कि आप that everyone आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो. You are very good kids, है ना. So you all must be helping your parents in some or the other way. So ये आपको लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखोगे? Yes, I help my. Yes, I help my पेरेंट्स. मतलब कि मैं मेरे पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ या करती हूँ. देन हाउ मतलब कि कैसे. सो आप कैसे अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हो, दैट यू नीड टू थिंक. ओके, आपको सोचना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो तो वो कैसे करते हो ना. मम्मी को टेबल सेट करने में हेल्प करते हो, फादर को कार वॉश करने में हेल्प करते हो, या फिर उन्हें कीज देते हो, कार कीज, बाइक कीज, वैसे हेल्प करते हो. सो दैट यू नीड टू थिंक कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हो. नाउ वी विल सी रिविजन ऑफ नेमिंग वर्ड्स दैट इज given on page number 48 in language leader, that is in textbook. Okay, so please open page number 48. So what are naming words? नेमिंग वर्ड का नेम ही हमें बताता है ना कि उसमें कुछ देखो नेम छुपा हुआ है. दैट इज, सो नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना. सो नेमिंग वर्ड्स, they are names of any persons, places, animals and things. persons यानी कि इंसान, जो इंसान के कोई भी नेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ठीक है, फ्रेंड. दिस ऑल आर नेम्स ऑफ पर्सन. देन कम्स प्लेस. प्लेस यानी कि जगह. सो कोई भी जगह के नाम, जैसे कि स्कूल, पार्क, अपार्टमेंट, then temple. Okay, so these are names of place. Then animal that is lion, tiger, cow, buffalo. Then yes, birds के भी names, that is sparrow, peacock, parrot. So these all are names of animals. And names of things, anything, कोई भी चीज है जो आपके आसपास होती है. जैसे कि अभी आपके पास है पेंसिल, you have pencil, eraser, book, your revision sheet. These all are names of things. Okay, so this is naming word. अब नेमिंग वर्ड जो होते हैं that can be also there two types, that is common names and special names. वो हमने ग्रामर में सीखा था, है ना. सो कॉमन नेम्स यानी कि जो कॉमन होते हैं, जो एवरी जो सब जगह होते हैं, दैट इज बॉय, गर्ल, ये सारे कॉमन नेम्स है. एंड देर आर सम स्पेशल नेम्स ऑल्सो. स्पेशल नेम्स इज अ स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, स्पेशल नेम जो होते हैं वो किसी पर्सन, प्लेस को दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी बॉय का नेम है, सो बॉय
कॉमन नेम, और उसे अगर हम रोहन कहेंगे सो दैट इज स्पेशल नेम. देन फॉर एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल कॉमन नेम होगा, लेकिन उसे एक स्पेशल नेम अगर देंगे हम सो दैट इज रिया. ओके, so these are special names and special names are always written in capital letters. See यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मायरा, ये स्पेशल नेम है. जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट, और फिर हम जो रिवीजन शीट में ग्रामर की दैट इज नेमिंग वर्ड की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे. सो इन रीडिंग ऑफ द चैप्टर क्या था इसमें, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए बॉय एंड ही टेल्स अस दैट संडे इज द फन डे टू क्लीन अवर होम. यानी कि संडे जो है वो एक फन डे है, वो एक डे है जहां पर वो अपना हाउस जो है वो क्लीन करते हैं, है ना. एंड देयर पेरेंट्स टर्न द वर्क इनटू फन, और वो जो है वर्क को फन में चेंज कर देते थे. कैसे? So they used to sing while dusting and mopping and play music while doing their chores, है ना. एंड फिर वो अपने पूरे घर को क्लीन करते हैं. they wash their car. अब जो बॉय है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है वॉशिंग एंड क्लीनिंग एवरीथिंग. देन दे वेंट टू मार्केट. फिर वो मार्केट जाते हैं, मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, है ना. और फिर चीजें खरीदने के बाद, और वो कौन कौन सी होती है चीजें, मोस्टली देयर हाउस होल्ड ग्रोसरीज. जो चीजें घर के लिए जरूरी होती है वो सारी चीजें वो मार्केट से खरीदते हैं. फिर वो वापस आते हैं, उनकी मम्मा जो है बॉय की मम्मा डिनर, शी कुक्स डिनर एंड, और फिर वो आफ्टर डिनर बॉय जो है वो कोई स्टोरी बुक होती है वो रीड करता है. सो बाय दैट वे दे टर्न देयर संडे इनटू फन डे, राइट. सो दिस इज अबाउट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. नाउ इन वोकेबुलरी वी हैव बॉडी एंड इट्स एक्शन. यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो जो डिफरेंट एक्शंस करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम दिस चैप्टर. सो सी, ईयर हमें किस में हेल्प करता है, वी कैन हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर, है ना, हम सुन सकते हैं. देन माउथ हेल्प अस टू ईट अवर फूड, है ना, हम फूड जो होता है वो अपने माउथ से ईट कर सकते हैं. देन आईज हमें किस में हेल्प करती है, दैट टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. यानी ये पूरी जो ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड है उसे देखने में आईज हमें हेल्प करती है. Then nose help us to smell. With the help of nose we can smell. Then feet help us to walk. मतलब feet की help से हम चल सकते हैं. And with the help of our hands we can write. इसमें write दिया है, but there are many such things that we can do with the help of our hands. हम लिख सकते हैं, we can pick up something, है ना, हम अपने hand की help से कुछ उठा सकते हैं. So this is how body parts help us to do many things. ठीक है? So that is body and its actions. Now we will see picture composition, that is the writing part of the chapter. So see, in picture composition इसमें आपको one picture दिया हुआ है, फिर देयर इज ए हेल्पिंग हैंड, एंड यहाँ पर इस तरीके से ब्लैंक्स दी होगी, और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ये हेल्पिंग हैंड है, उसे आपको उसमें से आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है. दिस कैन बी इन टू वेज. यहाँ पर एक पिक्चर दे दिया हो वैसे, और इंग्लिश ग्रामर की बुक में जो हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज कंपोजिशन, उसमें भी वहां पर भी क्या है कि ब्लैंक दी है, लेकिन उसके बाजू में वहां पर आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, और उस पिक्चर की हेल्प से आपको ऊपर हेल्पिंग हैंड भी होगा, उसमें से आपको वो वर्ड फाइंड करना है, कट करके फिर ब्लैंक में लिखना है. ओके, सो दैट इज पिक्चर कंपोजिशन. पिक्चर कंपोजिशन है वो पिक्चर के साथ ही दिया जाएगा,
और वो भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें है, और इवन जो आपकी टर्म 2 की रिवीजन शीट है उसमें भी वो दिया गया है इन दैट वे. ओके, सो नाउ open your revision sheet and we will see grammar and the remaining exercise. Now grammar. Write the naming words from the help box that you cannot see in the garden. So see, अभी जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है रिवीजन शीट की जो मेरी है, ठीक है, आई होप कि उसमें ही आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग एंड जेरोक्सिंग की वजह से ऐसा कलर, वो डार्क कलर उसका हो गया है, ठीक है. बट क्योंकि आप अच्छे से उस पिक्चर को देख पाओ, सो सी मैंने जिस बुक में से वो पिक्चर लिया हुआ है वो यहाँ पर रखा है. सो ये यही पिक्चर है, ये वाला, दिस इज द सेम पिक्चर. ओके, सो और यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर अंदर जो मैं लिखूंगी वो आपको नहीं दिखेगा. सो अब तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हेल्प बॉक्स में देखना है, ठीक है, और उन नेमिंग वर्ड्स को यहाँ पर, यानी कि हमारी रिवीजन शीट में यहाँ पर लिखना है कि जो हमें इस पिक्चर में नहीं दिख रहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो मैं ये हेल्प बॉक्स जो है वो इसमें से देखूंगी ये पिक्चर एंड आई विल राइट इट हियर. सो आपको अपनी रिवीजन शीट में यहाँ पर लिखना है. ओके, और अगर आपने न्यू प्रिंट करवाई है रिवीजन शीट की, और अगर ये पिक्चर अब आपके रिवीजन शीट में क्लियर है और आपको यहाँ पर 1 2 3 जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, सो तो फिर आप उसमें लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जो स्पेस है वहां पर आप लिखो. सो ओके, सो फर्स्ट इज ट्रीज. यहाँ पर है फर्स्ट वन ट्रीज. सो कैन यू सी ट्रीज इन दिस पिक्चर? यस, है ना, ट्रीज है. सो हम ट्रीज को यहाँ से कट कर देंगे, मतलब कि हम ये इसमें है. हमें वही चीजें लिखनी है यहाँ पर जो कि यहाँ दी है और हमें यहाँ पर नहीं दिख रही. नाउ कार्स. नेक्स्ट इज कार्स. कार्स, कैन यू सी कार्स? नो, कार्स नहीं है ना, मतलब ये नहीं है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे और यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे कार्स. ओके, कार्स. Now, next, aeroplane. Aeroplane. Can you see aeroplane? No, तो aeroplane भी नहीं है. So इसे भी हम सर्कल कर देंगे और यहाँ सेकंड की जो स्पेस है यहाँ पर लिखेंगे एरोप्लेन. अभी बॉयज. बॉयज, यस, बॉयज है ना, ये रहे. सो हम इसे कट कर देंगे. देन क्लाउड्स. कैन यू सी क्लाउड्स? क्लाउड्स है? नो, सो वी विल सर्कल क्लाउड्स एंड राइट इट इन दिस स्पेस. क्लाउड्स. ओके, नाउ बेंच. बेंच, यस, ये रही बेंच. सो उसे कट कर देंगे. नाउ बर्ड्स. बर्ड्स दिख रहे हैं आपको? यस, ये रहे. सो उसे भी हम कट कर देंगे. देन गर्ल. गर्ल, यस, ये रही. सो इसे भी कट कर देंगे. नाउ सीसो. ये है सीसो. सो यस, वो भी है, सो उसे कट कर देंगे. नाउ फेंस. क्या है ये? फेंस. फेंस यानी कि ये फेंस क्या होती है? वो किसी भी गार्डन के आसपास हम लगाते हैं ना फेंस, ताकि कोई भी बाहर से इस ऐसे आ ना जाए. मतलब कहीं कहीं पर वॉल्स होती है, फिर कहीं कहीं पे ऐसे लकड़ी की बनी हुई होती है. ओके, सो दैट इज फेंस. ये है फेंस.
सो फेंस भी है, सो उसे भी कट करेंगे. फ्लावर्स, यस यहाँ पर है, ये रहे फ्लावर्स, सो उसे भी कट करेंगे. नाउ स्टार्स. स्टार्स देख सकते हो आप इसमें, कैन यू सी स्टार्स? नो, स्टार्स नहीं है, सो उसे यहाँ पर सर्कल कर देंगे. सी ऐसे स्टार्स को सर्कल करके यहाँ पर लिखेंगे स्टार्स. ओके, एंड देन मून. मून भी नहीं है, है ना, सो इसे भी सर्कल करेंगे और यहाँ फिफ्थ ब्लैंक में लिख देंगे मून. एंड बटरफ्लाइज, यस ये रहे बटरफ्लाइज, सो बटरफ्लाइज को यहाँ पर कट कर देंगे. ओके, सो ये सारे ही क्या है, नेमिंग वर्ड्स है. नेमिंग वर्ड्स मतलब कि नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. और ये जो वर्ड्स है वो इस पिक्चर में नहीं है, नेमिंग वर्ड्स नहीं है. कार्स, एरोप्लेन, क्लाउड्स, स्टार्स एंड मून. ओके, नाउ turn your page and we will see next exercise. Now listening activity. Listen carefully and draw the objects in the given box. So here there is a box and you have to listen, मतलब कि सुनना है ध्यान से कि कौन कौन से objects, that is things जो मैं आपसे कहूँ that you need to draw. Okay, so the first one is a ball. A ball. Okay, ball. Then second is a book. You need to draw a book. आप स्केल और वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. मैं तो सिर्फ आपको ऐसे दिखाने के लिए ही ड्रॉ कर रही हूं. देन थर्ड इज बैट. ए बैट. बैट जो आप क्रिकेट में यूज करते हो ना, वो वाला. ओके, बैट. एंड थर्ड वन फोर्थ वन इज हनी बी. ए हनी बी. हनी बी कैसे करेंगे, पहले ऐसे टू कर्व्स करेंगे, फिर ऐसे सर्कल, फिर उसके विंग्स, और यहाँ पर ऐसे स्माइलिंग फेस. ओके, ऐसे. दिस इज हनी बी. सो इसमें ऑड वन आउट क्या होगा? व्हाट विल बी ऑड वन आउट? हनी बी. यस, बिकॉज ये सारे हैं, दीज आर नेम्स ऑफ थिंग्स, है ना. वेल हनी बी इज नेम ऑफ एन एनिमल. सो फोर्थ हनी बी इज ऑड वन आउट. नाउ स्पीकिंग एक्टिविटी. तो दिस मैं अभी आपको ये सिखा रही हूँ, एंड दिस आई विल अगेन रिवाइज इन ऑनलाइन क्लास. सो सी, डू यू ऑफर हेल्प टू एनीवन? हाउ, मतलब क्या कभी आप किसी को हेल्प ऑफर करते हैं? हेल्प ऑफर करना मतलब किसी को हेल्प के लिए पूछना. अब देखो कि सामने वाले इंसान को यानी अदर पर्सन को अगर कोई वर्क करने में परेशानी आ रही है, ठीक है, उसे कोई डिफिकल्टी आ रही है, देन यू आस्क देम कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इन दैट वे. सो कैसे हम हेल्प के लिए पूछ सकते हैं? सो यू कैन यूज मे और कैन. दैट मे आई हेल्प यू और कैन आई हेल्प यू. इन दैट वे आप उनको हेल्प के लिए पूछ सकते हैं. सो कौन कौन सी चीजों में हम किसी से पूछ सकते हैं हेल्प के लिए? सो हाउ वुड यू ऑफर ए हेल्प टू एन ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड? मतलब कि आप एक लेडी को देख रहे हो कि दैट उसे रोड क्रॉस करना है, ठीक है, तो कैसे आप कैसे उन्हें ऑफर कर सकते हो हेल्प? सो यू कैन से
मे आई हेल्प यू टू क्रॉस द रोड, मतलब क्या ये रोड को क्रॉस करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. मे आई हेल्प you to cross the road. Okay, in that way. Then second, how would you offer a help to a small child climb up the bus? आप एक देखते हो कि स्मॉल बच्चा है, उसे बस पे चढ़ना है, तो उसकी हेल्प कैसे करोगे? सो यू कैन आस्क कैन और मे आई हेल्प यू टू क्लाइंब अप द बस. To climb up the bus, may I help you or can I help you to climb up the bus? Okay. Then next, how would you offer a help to an old man picking up bags? So same, may I help you or can I help you to pick up bags or in picking up bags. Now fourth, how would you offer a help to your mother while picking up things? So ये इसके जैसे ही आएगा, mother may I help you और can I help you picking up things, क्या मैं आपकी इन चीजों को उठाने में हेल्प कर सकता हूँ मदर. How would you offer a help to your friend who fell down and got hurt? मतलब कि आपका एक फ्रेंड है जो गिर गया है और उसे चोट आई है. हर्ट का मतलब होता है चोट आना, और उसे चोट आई है तो उसकी हेल्प कैसे करेंगे आप? सो यू कैन ऑफर हिम और हर ए हेल्प दैट मे आई हेल्प यू और कैन आई हेल्प यू to get up or can I help you to drop you at home. Okay. और या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि do you need some help my friend, in that way. Okay, in that way हम किसी को भी ऑफर कर सकते हैं हेल्प. ये आप अपने घर से यू कैन स्टार्ट. ठीक है, अपने फादर को, अपने मदर को, अगर इफ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, ओके, आपके आसपास के फ्रेंड्स को, ट्राई टू ऑफर एन हेल्प. ओके, ट्राई टू ऑफर ए हेल्प टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. उन्हें हेल्प ऑफर करने की ट्राई करो. एंड इफ पॉसिबल यूज दीज वर्ड्स मे और कैन आई हेल्प यू. ठीक है, सो दिस विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास वर्क किड्स. आज हमने यूनिट 4 जो है वो रिवाइज किया. इन दैट हमने फोनिक्स किए, फिर लैंग्वेज लीडर में नेमिंग वर्ड्स रिवाइज किए. आफ्टर दैट वी सॉ रीडिंग ऑफ द चैप्टर, फिर रिविजन शीट की एक्सरसाइजेस देखी. देन इन वोकेबुलरी वी रिवाइज्ड बॉडी पार्ट्स एंड इट्स एक्शन, यानी बॉडी पार्ट्स जो एक्शंस करते हैं वो. And lastly we completed and we saw the picture composition part, that is the writing part of the chapter, कि जिसमें कि pictures दिए होंगे with the help of those pictures and help box आपको fill in the blanks जो है उसे fill करना है. Okay, and then listening and speaking activities. So this is all about today's class work kids. In today's homework आपको ये जो अपना work है that you need to complete. Okay, so bye bye kids.